of the world, like the Britain, like the France, like the Russia, their national language is, for the Britain, the national language Britain is English. English. But in case of the India's, there is no national language. इंडिया का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं. Okay. हिंदी was identified as the official language. इसको हिंदी को क्या बोला गया है? Only it is adopted language. It is not adopted as a national language. Okay. राष्ट्रीय भाषा नहीं. क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया बेटा? Why Hindi is not accepted as a national language? In spite of that, 40% people speak the Hindi. Why Hindi is not adopted? Because India is a multilinguistic country. If India make a nation on the basis, if India make its language, any language as a national language, then maybe there will be the conflict. Okay? हो सकता है like the Sri Lanka. Sri Lanka में क्या है? Sri Lanka is also the ethnic diversity is there. The people speak the different language, like the some people speak the Hindi, some speak the English, Telugu, Tamil, and the means ki Singla they speak. But who has got the which language is got the means ki got the position of national language? Sinhala. Sinhala was the official language. हाँ क्या बेटा? Ma'am, Sinhala was the official language. It was also not the national language. This later it is not accepted बेटा. They adopted official language that उनका national language के रूप में उन्होंने adopt किया. बाद में उन्होंने official language adopt किया जब इन्होंने क्या किया? The Tamil movement was started. तो there were lot of the cures for that. तो in India also the people decided. उन्होंने क्या decide किया था? कि in India the Hindi will be not be accepted as a national language. नेशनल लैंग्वेज के रूप में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. तो उन्होंने क्या अडॉप्ट किया? क्यों? क्योंकि इंडिया में डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज लोग बोलते हैं. ठीक है, इसलिए इसको अडॉप्ट नहीं किया गया. बट द हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट द 40% ऑफ द इंडियन. देयरफॉर देयर वर मेनी सेफगार्ड्स टू द प्रोटेक्ट द अदर लैंग्वेज. इंडिया में कितने लोग बोले जाते बेटा? व्हाई हिंदी अडॉप्टेड एज अ ऑफिशियल? Because 40% of Indian people use Hindi language. Hindi is adopted as an official language. देखो, besides the Hindi, there are 20 other languages recognized as a scheduled language. ठीक है? By the Constitution. हमारे Constitution में हिंदी के साथ साथ कितने लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया गया बेटा? 21 other languages. These languages scheduled language क्यों बोलते हैं? Why it is called the scheduled language? Because it is to the 8th schedule of Indian Constitution. Indian Constitution का जो 8 है, उसमें जब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें 8 स्केड्यूल्स थे. ठीक है, तो उस 8 स्केड्यूल्स का आखिरी जो भाग था 8वां, उसमें क्या रखा गया था? लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया. नाउ देयर आर 12 स्केड्यूल्स. अब कितने स्केड्यूल्स हो गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? 12. At times in the main constitution 8 schedule were the last schedules, and in these schedules what policy was kept? Language policy of India. ठीक है, इसीलिए जो 22 लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? These language are called Scheduled language. Scheduled language. Scheduled languages. Question: why these languages are scheduled language? Because they are mentioned in the 8th schedule of Indian Constitution. 8 schedules of Indian. मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है. Voice is not clear. Voice clear नहीं आ रही है. मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है. तुम लोग की आवाज नहीं आ रही.
अब आ रही है? No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. ठीक है, जब अपने कमरे में आके क्या करना चाहिए, ऐसा काम आपको करना है ताकि हवा पास ना आए, हवा बंद, एयर सप्लाई बंद हो जाए, ठीक है, क्योंकि एयर की वजह से क्या होता है, एयर की वजह से ही आग तो और जल्दी जाती है, कि नहीं, ऐसा करके एयर सप्लाई ही बंद हो जाए, जहाँ पे आग लगी है उसको ऐसे ढक लीजिए, एयर सप्लाई ही बंद हो जाए, तो क्या करना है, हम टिप की बात बताने के लिए रोल डाउन करना, आपको रखना है जमीन पे, गोल 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 रखते जाओ, देर तक रखते जाओ, तो अपने आप ये सफाई बन जाएगी और आपकी फिर के बाद हो जाएगी, फिर भी कुछ ना होना चाहिए। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। Ma'am, your voice is not audible. नहीं आ रही बेटा, आज तो मेरा दिमाग। मैम संस्कृति श्रीवास्तव माइक ऑन की अपना। हाँ, Yes, उससे ma'am. Yes, ma'am. आवाज आ रही बेटा? यस मैम आ रही है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. संस्कृति को बोलो अपना क्लास, अपना माइक ऑन करे, उसके भाई की क्लास चल रही क्या? Yes, ma'am. तो यू ऑफ दिस, Okay, ma'am. अपने भाई को बोलो उधर जाने के लिए, या तुम ही शिफ्ट हो। अपना माइक ऑफ करके रखो बेटा, नो नीड टू बी शिफ्ट। नाउ द वॉइस इज ऑडिबल बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So means ki why these language are called the scheduled language, because these are kept into the 8th schedule of Indian Constitution. So these are known as scheduled language. Okay. A candidate in an examination conducted for the central government positions may opt to take the examination in any of these languages. Suppose you want to give the, इसीलिए तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में क्या होते हैं, the paper will ask in the 2 mediums, Hindi and English. इंग्लिश। the South India, they can be asked into the Kannada and the English, Telugu in the English. तो इस तरह वहां पे पूछा जाता है, ठीक है। Tamil in English, ma'am. क्या बेटा? Tamil also, ma'am. Tamil or English. तो कहते हैं तमिल में, क्योंकि the all the students are means कि they have the choice to give their exams in any language, in their mother language or into the English language, they can be give. It is the choice in the front of that. जैसे तुम बोर्ड एग्जाम में हिंदी में भी राइट लिखना चाहते हो, you can be right. It is the means कि the its right is given to the all the people of our countries. This cannot be denied. कि हिंदी में भी तुम लिख दे रहे हो तो तुम्हारी कॉपी चेक नहीं होगी, दिस इज रॉन्ग। So state to have their own official language. Much of the government work take place in the official language of the concerned state. अब जैसे इंडिया की ऑफिशियल, यूपी का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, that can be work into the हिंदी लैंग्वेज और द इंग्लिश लैंग्वेज। अभी इंग्लिश को हम लोग बताएंगे क्यों है। इंग्लिश को हमारे स्केड्यूल में नहीं रखा गया है, इट इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज। National language. तो इंटरनेशनल लैंग्वेज के कारण जो ये कहा गया कि आइदर द पीपल्स कैन बी गिव देयर एग्जाम्स या द ऑफिशियल वर्क कैन बी कंडक्टेड आइदर इनटू द हिंदी इन केस ऑफ द यूपी और इनटू द इंग्लिश। इंग्लिश में दे सकते हैं या हिंदी में दे सकते, मतलब हिंदी में और इंग्लिश में। इन केस ऑफ द साउथ इंडिया
तमिल और हिंदी, तमिल और इंग्लिश, तेलुगु और इंग्लिश, कन्नड़ और इंग्लिश. English. Because English is an international. International language. Unlike Sri Lanka, the leader of our country adopted a very cautious attitude in spreading the use of Hindi. Use of Hindi. हमारे जैसे वहां पे श्रीलंका में लोगों को फोर्स किया गया था. You have to be do any things. You have to be appear into the exam. Yeah, you are going to be do any government work into which language? Only in Singla language. English. The government not force anyone to do anything, to do any activities in the Hindi. ये नहीं कहा गया था. In spite of that कि 40% people speak Hindi in India. Indian government ने किसी के ऊपर forcefully हिंदी impose नहीं किया था कि आपको हिंदी को फॉलो ही करना होगा. क्यों नहीं किया था? According to the constitution, the use of English for the official purpose was to stop in 1956. देखो 1956 में इंग्लिश को बंद कर दिया गया था. Is it clear? Use of English is stop. कि कोई भी इंग्लिश में यूज नहीं कर सकता. इंग्लिश हमारे कंट्री में यूज नहीं होगा बिकॉज इट इज फॉरेन लैंग्वेज. लेकिन बाद में क्या हो गया कि हाउएवर मेनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट डिमांडेड दैट द यूज ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू. तो ये किया जाता था कि जैसे साउथ में जो भी पेपर आते थे उसमें हिंदी और साउथ की लैंग्वेज रहती थी, लेकिन और इंग्लिश को कोई जगह नहीं दिया जाता. लेकिन साउथ इंडिया के लोगों ने क्या किया, उसके लिए मूवमेंट स्टार्ट कर दिया. दे सेड दैट वी कांट बी एक्सेप्ट हिंदी इन द प्लेस ऑफ इंग्लिश. वी कैन बी टॉलरेट द इंग्लिश बट कांट बी टॉलरेट टू द हिंदी. देख लो, हिंदी यहाँ की भाषा, लेकिन साउथ इंडियन हिंदी को टॉलरेट नहीं कर पाते. इंग्लिश इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज, इज आउटसाइड लैंग्वेज. द साउथ इंडियन कैन टॉलरेट दिस. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या किसी को भी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट नो अबाउट दैट इफ द गवर्नमेंट फोर्सफुली इम्पोज द हिंदी लैंग्वेज देन देयर विल बी द मूवमेंट विल बी स्टार्ट. इसलिए हिंदी पे को यूज करने में लोगों को फोर्स नहीं किया, स्पेशली इन विच एरिया, स्पेशली इनटू द सदर्न पार्ट ऑफ. Southern. So demanded that the use of English continued. In Tamil Nadu, this movement took a violent form. देखो, जब इंग्लिश को बंद कर दिया गया, in which year? English use of In English. 1965. 65. Then the people of Tamil Nadu, they started the movement against this. Why the government stopped for the using of English? Okay. The central government responded by agreeing to continue the use of English along with the Hindi for the official language. तो उन्होंने कहा ठीक है, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी यूज होगा. तो पेपर जो है अदर पार्ट में 3 लैंग्वेज में आते हैं, हिंदी, इंग्लिश और उनकी लैंग्वेज में. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hindi and their own language. Many critics think that the solution favored the English-speaking elites. Promotion of the Hindi continued to be the official policy of the government of India. Promotion does not mean that the central government can impose Hindi on the states where the people speak a different language. देखो, इसमें ये नहीं है कि इंग्लिश के साथ हिंदी को जो इंक्लूड किया जा रहा है, इसका मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी को इम्पोज करना चाहती है. ओके. The central government is not in the favor of impose the Hindi. इसलिए सेंट्रल अलाउड करती है, you can be also be give your paper in your own language. Okay. The flexibility shown by the Indian political leaders help our country avoid the kind of situations that the Sri Lanka find itself. इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट इसमें बहुत लिबरल है. उसने लोगों को फोर्स नहीं किया या तो हिंदी में काम करो, हिंदी में ही करना होगा क्योंकि मैक्सिमम पीपल स्पीक द हिंदी. उसने ऐसा नहीं किया. उसने क्या किया, पेपर में 3 लैंग्वेज देती है साउथ में, हिंदी, इंग्लिश एंड तमिल, या हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, एप्रिकस. एंड देयर इज अ चॉइस. पीपल कैन अटेम्प्ट देयर पेपर या डू एनीथिंग
in their own language, either English or in their own language. साउथ इंडियन हिंदी के अगेंस्ट रहते हैं, वो हिंदी को मानते नहीं बेटा, वो इंग्लिश को यूज करते हैं, हिंदी नहीं। वो हिंदी इंग्लिश बोल लेंगे, वहां का रिक्शा वाला इंग्लिश बोलता है, हिंदी नहीं बोलता है। यहाँ के लोग जाते हैं, उसे टूटी फूटी में वो इंग्लिश में बोलेगा ही। अंडरस्टूड? Yes, yes. और ये भी है, तमिल जो साउथ इंडियन है वो अक्सर अपनी लैंग्वेज को प्रेफरेंस देते हैं। और यूपी के लोग जो नदर इंडियंस हैं, कभी भी अपने आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे बारी को देखेंगे तो क्या शो ऑफ करने लगते हैं? दे स्टार्टेड टू स्पीक व्हिच लैंग्वेज? English. English. एंड देयर ओन लैंग्वेज। अरे यार मुझे को तो हिंदी आती ही नहीं है, वेरी सेमी हिंदी क्या होता है यार? दे स्टार्टेड विद से लाइक दिस इज वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड, डोंट बी से दैट मुझे हिंदी नहीं आती, आई एम अनेबल टू राइट एनीथिंग इन हिंदी। You should have to be command over the Hindi because our language is mother language क्या है? Hindi. The Hindi. Why avoid the Hindi? Why we are going to decide the Hindi? Learn from the South Indians. They give the more preference to their own language. ये बात है उनके अंदर, अपने लैंग्वेज। देखिए उनको इंग्लिश पे कमांड है, but they always give the respect to their own language. They are not like the people of the North India. और नदर इंडिया में जब भी दो लोग मिलेंगे बाहरी, they started to show off कि उनको हिंदी नहीं आती हो, बस इंग्लिश के ज्ञाता है। तो डोंट बी से लाइक दैट, यू हैव टू बी कमांड, यू हैव टू वेल वर्स इन विच सब्जेक्ट, अरे इन विच लैंग्वेज? इन हिंदी। हिंदी। इंडियन गवर्नमेंट ने इसलिए फोर्स नहीं किया हिंदी के लिए, क्योंकि यदि हिंदी को इम्पोज करते तो सबसे पहला मूवमेंट किधर से स्टार्ट होता? फर्स्ट मूवमेंट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द एंटी ऑफ द लैंग्वेज। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने लैंग्वेज को, हिंदी को इम्पोज नहीं किया एज अ नेशनल लैंग्वेज, और न तो उनको फोर्स करती है कि यू हैव टू बी यूज हिंदी, ठीक है, इन देयर एवरी एक्टिविटीज लाइक द श्रीलंका। ये तो समझ आया लैंग्वेज को? हाँ Ma'am, why South Indian people don't used to like Hindi? बेटा they say that कि we are the outsider, the northern people they are the outsider, we are Aryan, हम लोग क्या हैं? आर्य हैं। तो आर्य came from the Central Asia, so we are the outsider. And the South Indians they think that they are the real habitant of the India, the Dravidians, मंगोल, जो द्रविडियन है यहाँ के रियल हैबिटेंट है इंडिया का। तो उनका मानना है कि दे केम टू हियर एंड दे कैप्चर ओवर द कल्चर एंड एवरीथिंग ऑफ द इंडिया। देखो ब्रिटिश से इसलिए इंग्लिश से नहीं करते कि वो तो आए और चले गए, लेकिन हम यहाँ पे अपना घर बना चुके एंड वी आर हियर एंड वी ट्राई टू बी रूल ओवर द नेशंस। तो वो इसको टॉलरेट नहीं करते कि एक बाहरी आया है, अपनी कल्चर को पूरा एक्सप्लेट कर लिया है और उस कल्चर को हमको देना चाहता है, उस कल्चर के लिए हमें फोर्स करना चाहता है। तो दे आर नॉट एग्री टू अडॉप्ट दिस। ये रीजन बेटा, वो नदर इंडिया को इसीलिए नफरत से देखते हैं। देखते हो महाराष्ट्र में बाल ठाकरे जो हमेशा मराठियों को प्रेफरेंस देता है, हिंदू को यहाँ यूपी और बिहार के लोगों को मारता रहता है, करता है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, वो हिंदी को प्रेफरेंस नहीं दे सकते। बोल रहे वो टूटी फूटी इंग्लिश बोलेंगे, हिंदी नहीं बोलेंगे, नेवर। ठीक है, But ma'am, Southern Indians को भी हिंदी आती है। वो तो अब तो क्रेज चल रहा है बेटा, वो अब तो धीरे ट्रेंड बदल रहा है कि लोग सीखना चाहते हैं ना, जो इंटरेस्ट बढ़ रही है। अब जैसे नहीं होता तुम कोई बहुत सारी लैंग्वेज सीखना है, तो वही चीजें हैं कि दे आल्सो वांटेड टू बी लर्न अबाउट दैट। ऐसा नहीं है कि साउथ में जाते हैं तो वो लोग नहीं है कि अब है, अब ये धीरे धीरे ट्रेंड बदल रहा है। लेकिन मोस्टली जो ओल्ड है, वहाँ के जो पुराने विचारधारा वाले हैं, दे नॉट लाइक हिंदी। ठीक है, हिंदी को पसंद। अब तुम जा रहे हैं, हम लोग साउथ में जा रहे हैं, अब क्या मैक्सिमम पीपल आर मूविंग, यहाँ से जा रहे हैं बैंगलोर में जाकर के सेटल हो जा रहे हैं, पुणे में जाकर सेटल हो जा रहे हैं। तो क्या जो यूपी से जा रहे हैं, क्या वो मराठी सीख रहे हैं ना बोलने के लिए? आई एम फ्रॉम कैलकाटा। Yes, ma'am. In my childhood, before marriage, I was in the West Bengal, so I learned Bangla. I can speak, I can write Bangla.
ठीक है, तो मैं वहां थी तो बांग्ला जानती हूँ। into modernizations. Mostly South Indians, they do not like Hindi. हिंदी को नहीं, इसीलिए हमने मतलब हमारी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज रखा और नॉट बी फोर्स, लगता अंदर फोर्स नहीं किया कि यू हैव टू बी डू एनीथिंग इन द हिंदी, नो। यदि हिंदी करती तो सबसे पहला मूवमेंट किधर स्टार्ट होता? साउथ इंडिया से। Come the next and the topic, the central state relations. कि central state, you know that in India the entire, the most important work is done by whom? Central government. Central government. Central Now you also we know that the central government is always provide the financial support to the state government. Who provide the financial support to the state government? Central Central government. government. Now you have to be know कि what is the relation between the central and the state government, क्या था? तो first देखो यहाँ पे हम बताएंगे, पहले समझो। Restructuring the central state relations is one more way in which the federalism has been strengthened the practice. All of you know that in India there is a federalism. There is more than 2 tier of the government: central government, state government, and Local government. Local government. how the constitution arranged for the sharing the power work in the realities depend to the large extent of how the ruling parties and the leaders follow these arrangements. देखो, everything is mentioned into the constitution. In the constitution, power. शिवांश को ले लीजिए, वेटिंग रूम में है। कौन बेटा? शिवांश वंशी मैम। अच्छा बेटा, मोबाइल पता नहीं क्यों हैंग हो रहा है। Good morning, ma'am. आ गया? हेलो, मेरी मीटिंग तो लॉक नहीं है बेटा। हेलो, Yes, ma'am. माय मीटिंग इज नॉट लॉक्ड बेटा। वो क्यों नहीं ज्वाइन हो रहा? उसमें कुछ मिस्टेक होगा बेटा। इज इट क्लियर? यस मैम। आई हैव अलाउड टू ऑल, हमने लॉक नहीं करके रखा है। इसीलिए मैं इस पे नहीं पढ़ाती हूँ ना। चलो, तो power is already mentioned over where? The sharing of power is mentioned where? Constitution. But only the mention is not be sufficient. It is also be depend on whom? It is depend on the ruling party and the leader of this. कि वहां के लीडर कैसे हैं, वहां की पार्टी कैसी है, उसके बेसिस पे the peoples can be the party and the party can enjoy their party power. पावर भले ही मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है? इन प्रैक्टिकली इट इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गवर्नमेंट, ऑन द नेचर ऑफ द लीडर ऑफ दैट। ठीक है, कि वहां का लीडर कैसा है, वहां की मतलब नेचर, वहां के लोग कैसे है, दिस इज डिपेंड ऑन दिस। इज इट क्लियर? डिपेंड ऑन parties and the leader of
that countries. For a long time, the same party ruled both at the central and the most of the state. That means the state government did not exercise their right as the autonomous federal units. अब देखो, तुम लोग देखोगे, as and when the ruling party at the state level was a different, the party that ruled at the central tried to undermine the power of the state in those states. अब तुम लोग देखोगे 1990 के पहले which type of the government was there बेटा? किस तरह की पार्टी थी यहाँ पे 1990 के पहले? जल्दी बोलो, अभी किस तरह की गवर्नमेंट है बेटा? Coalition form of government. Coalition government. 90 तो coalition government. No, ma'am. There is one party government. That is, which party was always rule over the central government? Congress. Congress party. Very good. Congress party, you know that the Congress party always give the preference to only those states where their party will rule. अब देखो तुम्हारे बगल में एक पिक्चर बना हुआ है. Have you seen the picture? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेकार है ना, पता नहीं क्यों देख रहे हो, जरा से छू रहे दो भाग जाए. शेयरिंग करती हूँ. स्क्रीन शेयर करने में नहीं क्या हुआ? नहीं है. ये देखो ये कैसा हो गया. फोटो वही तो गया. ये दिख रहा है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये रोटेशन मोड में आ गया. ये रोटेट मोड में आ गया. रुको, देखो क्लियर नहीं. पिक्चर दिख रहा है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमारे पास बुक भी होगा ना? उसमें Yes, देखो ma'am. यहाँ पे Yes, ma'am. here the power of क्या लिखा है? Powers of the states. सारे पावर की स्टेट्स इसमें है, ठीक है. एंड मीन्स की ये क्या दिख रही है? इंदिरा गांधी क्या दिख रही है? हियर द हु इज स्टैंडिंग ओवर हियर? ये कौन लेडी है? Indira Gandhi. Indira Gandhi. क्या है? These are states. What she is observing? ये क्या देख रही है यहाँ से? What she is looking? क्या देख रही हैं? What she is looking here? States. Different states are coming and begging for power. Which All are the of you know- states coming? Who has the means ki all of you know that state governments are under the control of central government. Central government. Yes, ma'am. Which party is there? Center में कौन सी पार्टी है? Congress party. Yes. Congress party. And क्या दिया हुआ वहां पे? केरल दिया हुआ. दिस इज द केरल. देन मद्रास. उसके बाद क्या दिया हुआ? अदर उड़ीसा. ये लाइक दिस स्टेट. तो व्हाट इज
सी ऑब्जर्विंग दैट फ्रॉम विच पार्टी दे आर बिलोंगिंग, क्योंकि इन स्टेट में वो देख रहे हैं कि आइदर देयर पार्टी इज देयर और अदर पार्टी इज रूलिंग ओवर हियर. ओके, तो सी ट्राई टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल सपोर्ट टू ओनली दोज स्टेट्स वेयर हर पार्टी इज रूलिंग. इज इट क्लियर बेटा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अभी क्या देख रही हैं? देख रही हैं कि स्टेट वाले हैं, ये स्टेट्स जो है ये किस पार्टी का स्टेट्स है. ठीक है, जैसे केरल में कौन सी पार्टी रूल करती है यहाँ पे? सीपीआई. कौन सी पार्टी करती है? CPI. उसके बाद में है मद्रास, यहाँ पे है AIDMK, अन्ना द्रमुक. और ये कौन सी पार्टी है? कांग्रेस पार्टी है. ठीक है, तो ये सोच रही है उसी पार्टी को, उसी स्टेट को सपोर्ट करेगी, उसी स्टेट को क्या करेगी? फाइनेंशियल सपोर्ट देगी जिस स्टेट में कौन है? ओनली कांग्रेस. Yes, party is ruling. Which states are beneficiary? The party that is ruled by Congress. states. Both party who are under the rule of the Congress party. Otherwise, other parties states are sufferer for that. ये सारे sufferer हैं. ये कब तक था? Before 1919, the central governments never pay attention toward those states where the another parties were ruling over there. So the condition of the states will not be so good before 1919. Is it clear, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके पहले का कंडीशन बहुत खराब था. लेकिन ये देखो, अब ये क्या आ गया तुम्हारा 1990 के बाद का सिचुएशन है. व्हाट इज द सिचुएशंस आफ्टर 1990? हु इज सिटिंग ऑन दिस? कौन बैठा हुआ है? Ruling party. कौन बैठा हुआ है? ये कौन है? Atal Bihari Vajpayee. बिहारी वाजपेयी. और ये जो साइड में क्या बना हुआ बेटा? सारे ये चेयर पे बैठे हुए. Different parties. चेयर को किसने सपोर्ट किया बेटा? Different parties in coalition with the Atal Bihari Vajpayee. Coalition government. It is a coalition government. Means कि this government is formed by the support of these political parties. क्योंकि all of you know that the government is always formed on the basis of majorities. So this party BJP is got the maximum seat, but it is unable to show the majority. So the majority, it collide with this party. अपनी majority show करने के लिए ये इन पार्टियों से मिल करके बने हुए हैं. ठीक है, सपा है, सब सारी पॉलिटिकल पार्टी से मिल करके इन्होंने क्या बनाया? अपनी गवर्नमेंट को बनाया है. ठीक है, तो नाउ दिस गवर्नमेंट विल बी वर्क फॉर ऑल द स्टेट्स हु आर गिवन द सपोर्ट टू देम. मतलब ये जो सरकार है ये सारे स्टेट के लिए काम करेगी कि नहीं करेगी? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Why this party will be work? Because they all have supported him for forming the government. Very good, because they have given support to him, and if he not be work in the favor of them, if not given the support to them, Then they will what take their seats and the government will fall. call back there. They will take back their seats, and in that situation, what will happen? The government will be fall down. तो यही हुआ. Before 1919, the central government never paid the attention to the state government, but after 1919, the central government always pay attention to the state government. State government क्यों होता है? क्योंकि all of you know that during the elections, the major party never help to each other. जैसे जब इलेक्शन होता है तो कोई भी बड़ी पार्टी दूसरी बड़ी पार्टी को सपोर्ट करेगी? No, ma'am. नो. जैसे कांग्रेस को करेगी? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. कांग्रेस यदि मेजोरिटी शो नहीं कर पाएगी तो किसको मेजोरिटी शो करने का चांस मिलेगा? दूसरी बड़ी पार्टी. BJP. ठीक है, बीजेपी को. तो ये क्या करती हैं? जितने भी बड़े